व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो तुम लोगों की बहुत डिमांड रहती है टू मेक अ वीडियो ऑन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, एंड आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम दैट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इज नॉट समथिंग which gonna make you a profitable trader. There are more things than just trading strategy which gonna make you a profitable trader, which is your psychology, which is your emotion control, which is your discipline, which is your risk management, money management. These things are more important, but तुम लोगों की डिमांड है, so I'm gonna make a detailed video on trading strategy again. Now I trade basic, simple, support resistance, trend line, market structure and market structure shift. पहले भी मैं ये दिखा चुका हूँ तुमको, अभी भी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कुछ चेंज नहीं हुए। इट्स जस्ट दैट अब मेरे अकाउंट का साइज़ बड़ा है तो मेरे पे आउट्स बड़े आते हैं। जब मेरा अकाउंट का साइज़ छोटा था तो पे आउट छोटे आते थे। बिकॉज आई नो दिस थिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जस्ट फोकस ऑन इंक्रीजिंग द कैपिटल, नॉट ऑन इंक्रीजिंग योर रिटर्न्स। $100,000 के अकाउंट पे 10% इज $10,000, वाइल ऑन अ $10,000 अकाउंट 10% is only $1,000. So I focused on increasing my capital, and when I increase my capital, then obviously जो मेरे payouts हैं वो बड़े आते हैं compared to that जो मेरे पहले आते थे। Nothing changed. I trade simple basic support resistance, trend line, market structure shift, and sometime fib levels also. Fib level बहुत कम ही मैं यूज़ करता हूँ। Majority of the time it's support resistance, market structure shift, and nothing else. Now I'm gonna give you the trade breakdown of all the trades which I have taken in my Blueberry funded account. Recently, I passed my 200K funded account, and जो मेरा एक और 200K account है that is in phase 2. So मैंने अप्रैल या मई में एक वीडियो बनाई थी that I'm gonna aim for max allocation in Blueberry funded, जिसमें मेरा aim रहेगा कि by the end of 2025 I can withdraw $100,000 in payout from Blueberry funded. Unfortunately 2 मंथ पास आउट हो चुके हैं। इट्स जून एंड नाउ, मे बी 1 या 2 जुलाई को मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। सो 6 मंथ में मेरे को $90,000 का पे आउट निकालना है, बिकॉज मैं $100,000 को ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। सो व्हाट आई एम गोना डू इज मैं हर मंथ ट्राई करूँगा $15,000 का पे आउट निकालने का। सो आई विल बी हैविंग 2 अकाउंट ऑफ 200K, जिसमें मैं हर अकाउंट में एम करूँगा $7,500 का पे आउट निकालने का। सो बाय द एंड ऑफ 2025 आई कैन विड्रॉ $90,000, $10,000 पहले से है। सो by the end of this year I can withdraw $100,000 from one single prop firm. Now there is this one more thing, which is I am doing $10,000 funded account giveaway with Blueberry funded. Now all you have to do is just go and sign up using the link in description, and if you want you can use the code Morningstar Rohit. If some other code is giving you more discount, then go obviously and use that code, and if possible use the link which I have shared in the description, which will increase your chances of winning the giveaway. Now, without wasting any time, let me show you the chart, my trades, and the dashboard of Blueberry to explain you about my trades. So this is the chart of gold, and जो मैंने लेवल मार्क करे हुए हैं ना, ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिकॉज ये मैंने बाद में मार्क करे हैं। मैं यूजुअली जो भी प्राइस होता है ना, मतलब ये सारे बाय सेल के जो पोजीशन इंडिकेटर्स होते हैं, ये सब मैं हटा देता हूँ। बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू, मैंने अभी लगा रखे हैं। यूजुअली आई एम फॉर 1:1, तो तुमको ये 1:1 वाले ही दिखेंगे सारे। सो दिस इज़ माई लाइफ फंडेड अकाउंट, जो मेरे को 19 जून को रिसीव हुआ था। एंड इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट आई हैव कंप्लीटेड 3 मिनिमम प्रॉफिटेबल डे, जिसमें मेरे को 0.5% के 3 दिन चाहिए थे। आई हैव कंप्लीटेड दैट। आई हैव सिक्योर्ड $9,000, जिसमें से मेरा पे आउट आएगा $7,200। सो जो मेरा एम है पर अकाउंट $7,500 निकालने का, वो अचीव हो चुका है। आई एम नॉट गोना ट्रेड इन दिस अकाउंट अंटिल आई रीच टू माई पे आउट रिक्वेस्ट डेट, विच विल बी समवेयर अराउंड 2nd और 3rd जुलाई। तो उसमें मैं अपना पे आउट रिक्वेस्ट करूंगा। नाउ इफ आई शो यू द कंप्लीट डैशबोर्ड, आई हैव अ विन रेट ऑफ 94% in this particular account. The reason was very simple. You can focus on win rate or on risk reward. I focus on win rate more than risk reward. That is the reason. And my win rate is usually between 7 to 80 to 85%, because my risk reward is 1:1. Win rate is at 75-80%. That too by trading simple basic price action. So तुम लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी that strategy is something जो तुमको एक बार साइड में रखना पड़ेगा, एंड यू शुड फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज़ डिसिप्लिन, इमोशन कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एंड योर साइकोलॉजी. नाउ इफ आई शो यू, आई हैव ट्रेडेड इन दिस अकाउंट फॉर 3 days. पहले दिन मैंने 2500 बनाया, देन ऑन द नेक्स्ट डे आई मेड $5,242. देन आई ट्रेडेड ऑन दिस पर्टिकुलर डे जस्ट टू कंप्लीट माई 0.5% प्रॉफिटेबल डे वाला मिनिमम ट्रेडिंग डे. अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है. आई एम गोना रिक्वेस्ट माई पे आउट सून. 7 दिन बाद मेरा पे आउट है. 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ इफ़ आई शो यू माई फेज 2 अकाउंट, ये करंटली 1.5% पॉजिटिव में है, एंड इसका जो विन रेट है 71% चल रहा है एज ऑफ नाउ. एंड इफ़ आई शो यू, आई एम ट्रेडिंग दिस अकाउंट फ्रॉम 3 weeks, ऑलमोस्ट 3 weeks, मतलब 9 जून से ट्रेड कर रहा हूँ, तो 4 weeks हो चुके हैं इसको ऑलमोस्ट. ये पहले लॉस में गया, देन छोटा सा
$408 का प्रॉफिट, देन स्मॉल प्रॉफिट, रिकवर करा मैंने उसको, अगेन लॉस में चला गया, आई रिकवर्ड इट अगेन बैक, $5,000 का प्रॉफिट, देन $4,400 का प्रॉफिट। वापस से जब मैं इसको प्रॉफिट में लेके आया था 1% के आसपास, आई अगेन मेड अ लॉस एंड वापस से अकाउंट मेरा ड्रॉडाउन में चला गया था, आई गेस 4%। एंड ये वाला ट्रेड सेम ट्रेड था जो मैंने मंडे वाली वीडियो में दिखाया था, विच वॉज दिस ट्रेड। आई एक्सप्लेन द लॉजिक एंड देन आई रिकवर्ड इट बैक। तो मैंने 24th को एक ट्रेड लिया जिसमें मैंने अपने अकाउंट को रिकवर कर लिया। मेरा गोल था इस ट्रेड में कि अपने अकाउंट को वापस से ब्रेक इवन ले आऊँ। देन ये ट्रेड मैंने आज ही लिया था। इट्स शोइंग 26 बिकॉज 4:30 बज रहे हैं, 4 या 4:30 बज रहे हैं अभी सुबह सुबह के, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट्स शोइंग 26। बट ये 25th का ही ट्रेड है। तो ये 25th वाला ट्रेड है, ये है कि मैंने बहुत जल्दी एग्जिट करते थे बिकॉज देर वॉज दिस ग्रीन रेड कैंडल। सो मैंने इसको $2,680 के प्रॉफिट में ही एग्जिट कर दिया था। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट माई ट्रेड्स विच आई हैव टेकन, सो दिस वॉज द ट्रेड जो मैंने मंडे वाली वीडियो में शो करा था। नाउ द लॉजिक वॉज वेरी सिंपल। ईरान एंड इसराइल का वॉर चल रहा था। ट्रंप ने, आई गेस उस दिन ये न्यूज़ आई थी कि यूएस ने अटैक कर दिया ईरान पे एंड देयर वाज दिस गैप अप ओपनिंग। नाउ इसके बाद मार्केट नीचे आ रहा था, सो आई थॉट कि ये गैप फिल करेगा देन इट विल गो अप अगेन, एंड इसी वजह से मैंने अपना SL58 समथिंग लेवल के आसपास रखा था, सो दैट ये जो ट्रेंड लाइन अंदर है ना, सो लाइक इफ़ आई गो ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम एंड इफ आई शो यू, दिस इज़ अ 4 आवर टाइम फ्रेम एंड प्राइस जो है ना एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। इट्स फॉर्मिंग हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। नाउ अगर मैं बोल रहा हूँ ट्रेंड लाइन, इसका सिंपल मतलब है मार्केट स्ट्रक्चर। बिकॉज एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है देन ऑब्वियसली इट्स फॉर्मिंग हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। एंड डाउन साइड में है तो देन इट्स फॉर्मिंग लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉज लुकिंग फॉर अ हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन, तो पिछला वाला हायर लो ये था, देन ये हायर हाई बनाया मार्केट ने, देन हायर लो हॉरिजॉन्टल लेवल के हिसाब से ये हो सकता था, बट व्हेन आई ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन it came out that this could be a higher low and that exactly turn out like this। and मैंने यहाँ पे भी एक बाय साइड का ट्रेड लिया था, that was in some separate account but I took a buy side trade here because there was a trend line support। now जब मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ ना, there could be two things which can happen। फर्स्ट थिंग, यहाँ से मैंने बाय करा विच वॉज स्टैंडिंग सपोर्ट, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा लिक्विडिटी लेगी एंड ऊपर चले जाएगी, मैं प्रॉफिट में हूँ। मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेगी, ऊपर चले जाएगी, अगेन मैं प्रॉफिट में हूँ। मार्केट लिक्विडिटी लेके पूरा नीचे भी आ गई इस वाले सपोर्ट तक एंड यहाँ पे मार्केट ने हायर लो फॉर्म करा, देन ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है। देन अगेन आई लुक फॉर अ बाय साइड ट्रेड फ्रॉम हेयर, दूसरे अकाउंट में लूंगा, या अगर मेरा उस अकाउंट में ड्रॉ डाउन बचा होगा देन अगेन आई लुक फॉर अ बाय साइड ट्रेड इन द सेम अकाउंट बिकॉज इट्स फॉर्मिंग हायर लो हेयर। बट देयर कुड बी टू चांसेस, लाइक इधर यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा, आई विल मेक अ प्रॉफिट, थोड़ा लिक्विडिटी लेगा, मैं अपना एसएल नीचे रखूंगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, आई विल मेक अ प्रॉफिट। अगर यहाँ तक आ गया, मेरा एक एसएल जा चुका है, देन आई लुक फॉर अ री एंट्री एट दिस लेवल बिकॉज इट विल एक्ट एज अ हायर लो, सॉरी, बिकॉज हायर हाई था, हायर लो बनाया, हायर हाई था, इट विल फॉर्म हायर लो, इधर ही बना दिया। ट्रेंड लाइन ने मेरे को एक एडवांटेज दिया कि मैंने पहले ही देख लिया कि भाई देर आर हायर चांसेस दैट यहीं से मार्केट एक हायर हाई बनाने जा सकता है और यहीं से मार्केट हायर लो बना के हायर हाई बनाने चला गया। देन व्हेन मार्केट कम टू दिस लेवल विच इज अगेन हायर लो लेवल, मैंने अगले दिन बाय साइड का ट्रेड भी लिया था यहाँ से। सो ये मैंने तुमको एक बेसिक ओवरव्यू दिया। नाउ इफ़ वी गो ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम अगेन, सो 4 आवर का ये वाली ट्रेंड लाइन थी एंड पूरे चैनल के अंदर था, देन 1 आवर पे एक ये चैनल फॉर्म हो रहा था। नाउ ईरान की वॉर थी, यूएस ने एंटर करा, देयर वाज गैप अप ओपनिंग एंड मार्केट नीचे आ रहा था। आई थॉट ये गैप कवर होगा देन मार्केट विल गो अप, बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरा नीचे आ गया प्राइस, इट कम डाउन टू दिस सपोर्ट लेवल। नाउ आई डिड द वेरी सेम थिंग जो मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन करा, विच इज़ यहाँ पे मेरा एसएल गया। सो जो मेरा ये ट्रेड था ना, इस ट्रेड में मेरा एसएल हिट हुआ, देन ये मेरा फेज 2 मैंने ट्रेड लिया था। वंस आई बुक का लॉस इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, जब मेरा वहाँ पे लॉस हो गया ना, व्हाट आई डू इज, अब मेरा वहाँ पे ऑलमोस्ट मैं डेली ड्रॉडाउन के पास हूँ बिकॉज आई रिस्क 4 और 4.5% इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। सो अब मैं वहाँ पे दूसरा ट्रेड ले ही नहीं सकता। सो आई गो इन माई फंडेड अकाउंट एंड आई टुक अ बाय साइड ट्रेड from 3350 level। So this was the trade which I took, this was the very exact trade which I took in the life funded account। so ये मैंने 3350 के लेवल से लिया था। the the trade logic was very simple। भाई यहाँ पे एसएल हिट हो गया, अब नीचे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यही है, अब मार्केट कम डाउन टू दिस लेवल, थोड़ा बहुत लिक्विडिटी लेने नीचे आ सकता है, दैट इज़ द रीज़न मैंने अपना थोड़ा एसएल भी बढ़ा रखा था, लाइक इट वॉज समवेयर अराउंड 36 37 38 लेवल के आसपास था एंड आई एम फॉर 1:1। आई बुक्ड
प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड एंड मेरा इसमें प्रॉफिट हुआ था 3686 का. नाउ इस ट्रेड में प्रॉफिट करने के बाद आई टुक सम क्विक स्कैल्प्स जहाँ पे मैंने $752 बनाया. देन आई मेड 196, 260. देन आई मेड अ ह्यूज लॉस विच इज़ ऑफ $9276. एंड जो मेरा ये जो मेरा ट्रेड था ना, आई लेट मी एक्सप्लेन यू. देयर वाज दिस मैसिव रेड कैंडल एंड इस मैसिव रेड कैंडल के बाद मैंने एक ट्रेड लिया था सेल साइड का विद इंटेंशन दैट मार्केट विल अगेन कम डाउन टू दिस लेवल और इट विल टेक द लिक्विडिटी एंड देन इट विल गो अप. या तो यहाँ तक आएगी, या तो लिक्विडिटी, या तो मार्केट यहाँ तक आएगी, लिक्विडिटी लेगी, देन ऊपर जाएगी. नहीं तो यहाँ पे आके ऑलरेडी 2 या 3 बार आ चुके मार्केट सीधे नीचे फॉल कर जाएगी. So I took a sell side trade. If I show you this trade, this was a sell side trade and मैंने 3359 पे एंट्री करी थी and I booked a loss in this trade at 3369 level. So I entered somewhere here and I booked a loss here because I saw कि that भाई बड़ा बुलिश मूव आ रहा है एंड जो मैंने एक्सपेक्ट करा था गोल्ड में वो वाला मूव नहीं आ रहा. देन मेरा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट था. आई बुकड अ लॉस इन अदर ट्रेड. देन आई टुक द थर्ड ट्रेड फॉर द डे जिसमें मैंने अगेन इस ट्रेड के बाद वापस से $2400 का प्रॉफिट करा एंड दैट वॉज दिस ट्रेड. जब मार्केट वापस से अपना ये गैप लेवल कवर कर चुकी थी और ऊपर आ चुकी थी, आई टुक अ बाय साइड ट्रेड हेयर. लाइक लेट मी शो यू द एग्जैक्ट प्राइस. 3379.85 से लेके 33 बाइंग प्राइस 3379 था एंड आई एग्जिटेड द ट्रेड एट 3385. सो आई एंटर्ड समवेयर ए हेयर एट 79. जब ये बड़ा एक वीक मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, आई एंटर्ड समवेयर हेयर इन बिकॉज यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था विद द इंटेंशन टू कैप्चर दिस फुल मूव. एंड मैंने जो अपना एसएल रखा था आई केप्ट इट समवेयर हेयर कि मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ 1:1 का SLTP रख के. आई विल बुक माई प्रॉफिट हेयर बट मैंने थोड़ा इसको अर्ली बुक कर लिया विच इज़ एट 85 लेवल बिकॉज यहाँ पे काफ़ी देर मार्केट रुका हुआ था. इफ़ यू सी दिस कैंडल एंड यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर रुका हुआ था. सो आई exited from that trade at this level. Then there was this $1200 profit trade जो कि मैंने लिया था ये वाला. अगेन वेरी सिंपल लॉजिक विच इज़ मार्केट आई रेजिस्टेंस पे, ओके, एंड देयर वॉज दिस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एज वेल. लाइक if I draw this trend line, there was this resistance level as well. ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था यहाँ पे, प्लस देयर वाज दिस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस. आई टुक अ सेल साइड ट्रेड एंड मेरे को ज़्यादा इसमें बनाना था. आई एम्ड फॉर ऑब्वियसली माई TP वॉज एट 3382 बट मैंने 3387 पे एग्जिट कर दिया. द ओनली रीज़न वॉज 0.5% के मेरे को 3 ट्रेडिंग डे चाहिए एंड मैं ऑलरेडी $5000 इस दिन बना चुका था इवन आफ्टर टेकिंग अ $2900 लॉस बिकॉज मैंने बीच में क्विक स्कैल्प्स भी लिए थे एंड उसको इंक्लूड करके एंड जो ये 2 या 3 मेन ट्रेड थे इनको इंक्लूड करके आफ्टर मेकिंग अ $2900 लॉस मैं $5000 एक सिंगल डे में बना चुका था इन माई फंडेड अकाउंट. सो दिस वॉज द डे जहाँ पे मैंने $2900 का लॉस लेने के बाद भी $5000 बना दिए थे. सो आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क द प्रॉफिट एनी मोर एंड मैंने इस ट्रेड को काफ़ी जल्दी एग्जिट कर दिया विद द प्रॉफिट ऑफ $1200 ओनली. सो दीज आर द ट्रेड विच आई हैव टेकन इन माई लाइफ फंडेड अकाउंट. देन अब फर्स्ट डे जो मैंने मंडे को ट्रेड लिया था उसमें यहाँ पे मेरा लॉस हो गया था बिकॉज मार्केट केप्ट ऑन फॉलिंग. देन ऑन द नेक्स्ट डे विच इज़ ऑन ट्यूसडे अगेन देयर वॉज न्यूज़ दैट ट्रंप ने ईरान और इसराइल के बीच में सीज़ फायर अनाउंस कर दिया है. सो द लॉजिक वॉज वेरी सिंपल. अगर सीज़ फायर हुआ है देन ऑब्वियसली गोल्ड विल गो डाउन एंड जो बाकी चीज़ें हैं लाइक क्रिप्टो एंड इंडेक्सेस वो ऊपर जाएंगे. सो मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी एंड मैंने यहीं पे एक सेल सेट का ट्रेड लिया था. SL आई केप्ट इट हेयर. द रीज़न वॉज वेरी सिंपल. अगर एक गैप फिल करने आता भी है ना मार्केट तो यहाँ पे मेरा SL हिट नहीं होगा एंड सो आई मेड $6940 एंड ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करा था 62 से. दिस वॉज द एग्जीक्यूशन लेवल एंड आई केप्ट माई SL अबव दिस बिकॉज ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता था कि मेरा SL हिट हो एंड ये गैप फिल अगर करने मार्केट ऊपर भी आता तो भी मेरा SL थोड़ा उस गैप से ऊपर जाता सो दैट मेरा SL हिट नहीं हो. एंड देयर वॉज अनदर रीज़न दैट जो ये 4 आवर की ट्रेंड लाइन थी ना इसका ब्रेक डाउन भी हो चुका था. सो आई लुक फॉर अ सेल साइड ट्रेड एंड मैंने ये सेल साइड का मूव कैप्चर करा. आई कुड हैव होल्ड दिस ट्रेड बट मेरा इंटेंशन उस दिन का ये था कि मैं वापस से अपना अकाउंट ब्रेक इवन पे ले आऊँ बिकॉज मैं 4 हफ्ते से अपना फेस टू वाला अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ एंड वो पॉजिटिव नेगेटिव ही चल रहा था. तो मेरा वापस से डिसीजन था कि पहले ब्रेक इवन पे लाते हैं देन उसके बाद वापस से ट्रेड करूँगा इसको. विद दिस पर्टिकुलर ट्रेड आई ब्रिंग माई अकाउंट टू ब्रेक इवन अगेन. देन कल विच इज़ ऑन 25th वेडनेसडे को आई टुक दिस ट्रेड and if you see the total movement in market is of 250 pips something.
कोई मेजर मूव ही नहीं आया मार्केट के अंदर। लाइक टोटल मूव ही कितना था पूरा मार्केट का, ओवरऑल मूव वॉज ओनली टू 240 पिप्स, 250 पिप का मूव था। आई टुक दिस बाय साइड ट्रेड। मैंने ऐसा भी बड़ा रखा था और टीपी तो मैंने ऑफ 40 रखा था, बट मेरा था कि मैं पूरा इसको अकाउंट को एक सिंगल ट्रेड में पास कर दूंगा। मैंने यहाँ पे टीपी 40 रखा हुआ है, दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे मैंने ये लेवल मार्क कर रखा है। बट मेरा ये पूरा रेजिस्टेंस तक इसको ट्रेड को होल्ड करना था, यहाँ तक मेरा पूरा अकाउंट क्लियर हो जाता, फेज़ 2 वाला अकाउंट जो ब्लूबेरी का है। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट इधर ही मूव होता रहा, and in the end I closed it somewhere here at 11 15 or 20, and I made $2700 only in this particular trade. अब मार्केट वापस से ओपन हो चुकी है and I'll look for a buy side trade again to capture this move, to capture this buy side move, and let's see क्या होता है। I'll go for this buy side trade and तुमको पता चल ही जाएगा भाई, इसके बाद तुम चार्ट ओपन करके देख लेना जब भी वीडियो डलेगी। देयर वॉज दिस ट्रेड विच आई मार्क्ड, ये मैंने अपने दूसरे अकाउंट में लिया था, विच वॉज अ फेज़ 1 अकाउंट, दूसरे 5% का, क्या तुमको बता ही देता हूँ यार। एंड मेरा फेल हो गया था। नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ इशू विद 5% बिकॉज बहुत रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं वो लोग, बट स्टिल पे आउट दे देते हैं। सो प्रॉफॉर्म ऐसी चाहिए जो पे आउट देती रहे। सो आई टुक अनदर अकाउंट ऑफ 5%। अगेन आई लुक फॉर अ बाय साइड ट्रेड। द लॉजिक वॉज वेरी सिंपल, 3300 का लेवल है, राउंड लेवल है, इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। प्लस प्रीवियसली यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म हो ही रहा था, देन ऑब्वियसली अगर कोई राउंड लेवल पे आता है ना, मेरा ये हमेशा रहता है, अगर वो आ रहा है तो लिक्विडिटी लेगा, थोड़ी तो लेगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो राउंड लेवल पे आए और राउंड लेवल टच करने से पहले रिवर्स कर जाए। इधर इट विल टच राउंड लेवल दैट इज 3300 और इट विल गो डाउन अ लिटल बिट, थोड़ी लिक्विडिटी लेगा, देन ऊपर जाएगा। सो आई टोक अ बाय साइड ट्रेड हेयर। इफ आई शो यू, दिस वॉज द बाय साइड ट्रेड एंड आई मेड $8000, 8% का प्रॉफिट होता है। आई मेड $8000 ऑन द वेरी फर्स्ट डे। इफ़ यू सी 3299.77 से मैंने एंट्री ली, 3319, मतलब मैंने पूरा मूवी कैप्चर कर लिया विद द, इसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा 1:2 1:2.5 का था। एंड देन कल मैंने ये $500 बनाए थे बिकॉज 0.5 के 3 प्रॉफिटेबल डेज चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर दिस वन पर्टिकुलर अकाउंट। सो इफ़ यू सी, every single trade I have taken is based on simple basic price action, nothing else भाई, कुछ भी नहीं कर रहा मैं। और सिंपल ट्रेंड लाइन्स हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, थोड़ा बहुत लिक्विडिटी एंड ऑल, ये तुम अपने आप विद टाइम समझते जाओगे। आई मेक अ वीडियो ऑन दिस एज वेल कि तुमको बेसिकली लिक्विडिटी का कैसे पता चलेगा कि देयर कुड बी चांसेस दैट मार्केट if come to this level it will take liquidity, then it will go up. I'll make a video on that as well, but these are the simple basic price action based, and the logic for this one trade was also very simple. मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दे दिया था, मार्केट ओपन हुई यहाँ पे, आई टुक अ बाय साइड ट्रेड विद इंटेंशन टू कैप्चर दिस बाय साइड मूव कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तक जाएगा एंड सेल साइड का मूव आएगा तो यहाँ से आएगा। आई टुक दिस ट्रेड विद इंटेंशन टू कैप्चर दिस बाय साइड मूव, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करती रह गई एंड देयर वाज टोटल 250 पिप मूव इन द होल डे। एंड मैंने इस ट्रेड में सिर्फ आई मेड $2700 एंड ये ट्रेड मेरा 19 घंटे चला है मेरा ये ट्रेड। लाइक इफ़ यू सी, मेरे ट्रेड ब्लूबेरी में ही है जो मेरे ट्रेड थोड़े ज़्यादा चलते हैं, लाइक 12 घंटे एंड इतने जो मेरे चलते हैं, वरना मेरे दूसरे अकाउंट में इतने ट्रेड चलते ही नहीं कभी, बिकॉज उसमें मैं लॉट ज़्यादा ले सकता हूँ एंड मेरे बहुत जल्दी एंट्री एग्जिट होती है, तो इतने लंबे मेरे ट्रेड चलते नहीं। बट ब्लूबेरी में और बहुत बहुत ही कम मूवमेंट था, लाइक 250 पे मूव इन गोल्ड इज नथिंग एंड कोई मूव ही नहीं था। सो ये यहीं पे मूव होता रह गया एंड दिस इज लिटरली व्हाट आई डू। आई डोंट लुक फॉर एनी अदर थिंग, दिस इज सिंपल बेसिक प्राइस एक्शन एंड नथिंग एल्स। सिर्फ इतना ही देखता हूँ, इसी के बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ, इसी के बेसिस पे पे आउट ले रहा हूँ। इतने पे आउट भी अगर तुमको भरोसा दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है कि भाई प्राइस एक्शन से पैसा कमाया जा सकता है, देन आई डोंट नो what will make you believe that price action is the only thing which you need in order to make money. And उसके अलावा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अलावा there are more things which you need in order to make money. And in my Apex account, if I tell you, I trade on Nasdaq. and Nasdaq अगर मैं तुमको दिखाऊँ ना, ये लो भाई, this was 4 hour trade, 4 hour चार्ट, क्या है भाई, चैनल के अंदर मूव कर रहा है, ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है एंड नथिंग एल्स। इन कितना क्लियरली फॉलो कर रहा है भाई,
क्यों तुमको बीच में देखना भाई यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, मैं वो सब देखूंगा। क्लियर तुमको दिख रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब ट्रेंड लाइन भी ऐसे नहीं, तुमने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो ऑब्वियसली तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा ही हिट होगा। लाइक तुम मेरी ट्रेंड लाइन देखो, कोई भी ट्रेंड लाइन एक सिंगल लाइन नहीं है। देर आर ऑलवेज जोन्स विच आई हैव ड्रॉन। ट्रेंड लाइन में भी हॉरिजॉन्टल लेवल में भी जोन्स हैं, ट्रेंड लाइन में भी जोन है। इन कितना क्लियर यार, इससे ज़्यादा क्लियर क्या हो सकता है। नेस्डेक यहाँ पे आया भाई, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आया, यहाँ पे जो पिछला नेस्डेक का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे आया, सॉरी, पिछला जो नेस्डेक का रेजिस्टेंस लेवल था उससे थोड़ा सा लिक्विडिटी ली, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे आया, एंड मे बी इट विल कम डाउन, जो कि दिख रहा है। एंड तुम लोग भी ये देखते रहना कि ये चीज़ फॉलो हुई है या नहीं हुई, विच आई थिंक विल प्ले आउट। एटलीस्ट नेक्स्ट विल कम डाउन टू दिस लेवल अगर इसको ऊपर जाना भी है, और एल्स इट विल कम डाउन टू दिस लेवल। आई डोंट नो। ये तो वैसे भी 1 आवर 4 आवर का टाइम फ्रेम है। यूजुअली 1 आवर का टाइम फ्रेम देख के जाके 5 मिनट एंड 1 मिनट पर ट्रेड करता हूँ, स्पेशली इन फ्यूचर्स। सो दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई ट्रेड। तुमको पूरा डैशबोर्ड दिखाते, दिस वॉज द 5% अकाउंट, ये फेज़ 1 में है, ये भी आई शोड यू। सिंपल यार, सिंपल बेसिक price action and nothing else. Once you spend time on chart ना, you will understand this thing कि भाई एक certain movement है, इस certain time पे आती है, certain type से आती है, then तुमको ये 50 अलग चीज़ें तुमको 3-3 4-4 महीने बिठा के सिखाते हैं ना, जिसे तुमसे 1-1 2-2 3-3 लाख रुपए लेते हैं, वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। Now all these things they tell you because they want कि तुम को ऐसा लगे कि भाई अगर तुमने 3 लाख दी ना, तुम्हारे वसूल हो गए। अब तुमको ये 3 लाख लेके बोल देगा कि चलो भाई ये चीज़ थी, इतना था, यहाँ से सपोर्ट से बाय था, यहाँ से ऐसा था ऐसा था ऐसा था, दैट्स इट। तुमको लगेगा 3 लाख मेरे बर्बाद हो गए, बल्कि वो चीज़ इतनी सफिशिएंट है, इससे ऊपर तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर मोर थिंग्स विच यू नीड टू वर्क ऑन, जो मैं 10 बार इस वीडियो के अंदर ही बोल चुका हूँ, विच इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट, योर मनी मैनेजमेंट, योर डिसिप्लिन, योर इमोशन कंट्रोल। बट अगर वो चीज़ के तुमसे पैसे लेंगे तो तुमको लगेगा यार मेरा पैसा वेस्ट हो गया। तो उनको ये पता है कि ह्यूमन नेचर है, उनको चाहिए अगर पैसा दे रहा हो तो 4 महीने बैठ के अननेसेसरी कुछ भी सीखता रहो। तो वो तुमको सिखा रहे हैं, तुम बेवकूफ़ बन रहे हो। एंड आई नो दिस थिंग कि इस वीडियो के नीचे भी आके कुछ लोग बोलेंगे ब्रो यू बिकम माई लिक्विडिटी। तो उन लोगों को मैं इतना ही बोल दूँ, भाई तुम्हारी लिक्विडिटी बनूंगा या नहीं बनूंगा उसको तो पता नहीं, बट पहले यार एटलीस्ट $10-20 का पे आउट निकाल लो, उसके बाद नीचे आके कमेंट करना। कमेंट तुम ऐसे कर रहे हो यू विल बिकम माई लिक्विडिटी, अबे मैं $150,000 प्लस के ऊपर के पे आउट निकाल चुका हूँ। तो ये सब कमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा बनाओ, मैं तुम्हारी लिक्विडिटी बनूंगा या नहीं बनूंगा वो सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, पहले पैसा कमाने पे ध्यान दो। पैसा तुम्हारा बन नहीं रहा, लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ तुम सीख चुके हो। इट इज़ ऑफ नो यूज़ इफ़ यू आर नॉट मेकिंग अ पेनी फ्रॉम द मार्केट। किसी की चार्ट के कि अगर उसने तुमको कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया और उसके बैक टेस्टेड डेटा दिखा दिया कि ये काम कर रहा है, उससे तुम प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले। प्रॉफिटेबल तुम बनोगे जब तुम खुद चार्ट्स पे ट्रेड लोगे, बैठोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे जब। तो वो काम करो, उसके बाद देखा जाएगा वेदर आई विल बिकम योर लिक्विडिटी और नॉट। और जब 150 के 200 के प्लस के पे आउट निकालो, जब जाके ये सब कमेंट करना कि ब्रो यू विल बिकम माई लिक्विडिटी। सो आई टोल्ड यू ऑल दैट आई एम गोना टेक अ बाय साइड ट्रेड इन द ब्लूबेरी फेज 2 अकाउंट, जिससे कि मैं अपना अकाउंट पास करूंगा। बट आई हैव सीन दिस थिंग दैट सेल साइड ट्रेड वुड बी बेटर आफ्टर लुकिंग एट द चार्ट अगेन डूइंग सम टॉप डाउन एनालिसिस। आई हैव फाउंड दैट सेल साइड मूव विल बी बेटर। मैंने बाय साइड का ट्रेड लिया भी था, बट आई एग्जिटेड द ट्रेड एट अ प्रॉफिट ऑफ $800। उसके बाद मैंने सेल साइड का ट्रेड लिया था, विद विच आई क्लियर्ड माई फेज 2 अकाउंट एज वेल। एंड इसके साथ मेरा ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट में मैक्स एलोकेशन हो चुका है, वेयर आई हैव नाउ 400K फंडेड इन ब्लूबेरी अकाउंट। नाउ लेट मी शो यू दैट ट्रेड एज वेल, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ऑन द वेरी सिंपल बेसिक प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल। सो दिस वॉज द ट्रेड। मैंने बाय साइड का ट्रेड लिया था, एज आई टोल्ड यू मैं बाय साइड का ट्रेड लूँगा, बट आई बुक दिस एट अराउंड $800 प्रॉफिट। देन मैंने सेल साइड का ट्रेड लिया था, विद विच आई बुकड $6,144 प्रॉफिट एंड अराउंड $50-60 बचा था। उसके लिए मैंने क्विक एक स्कैल्प मार दिया, इसमें $700 का प्रॉफिट हो गया, विद विच आई क्लियर माई अकाउंट। एंड इसके साथ मेरा फेज 2 क्लियर हो गया, वेयर नाउ आई हैव 400K मैक्स एलोकेशन विद ब्लूबेरी। नाउ द ट्रेड लॉजिक वॉज वेरी सिंपल। व्हेन आई हैव सीन दिस थिंग द प्राइस इज मूविंग इन दिस चैनल, एंड मैं बाय साइड का ट्रेड लिया था मैंने इधर, बट आई एग्जिटेड हेयर एंड आई टुक अ सेल साइड ट्रेड फ्रॉम हेयर। नाउ यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेने के बाद आई हैव केप्ट माई एसएल अबव द रेजिस्टेंस लेवल। प्राइस शो अ फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, रीच टू दिस रेजिस्टेंस लेवल, एंड देन देयर वाज दिस
quick sell side move. The logic was very simple, as I told you. Trend line resistance था, it goes up to horizontal resistance level. There was the false breakout and मेरा SL मैंने इसके लिए इसके ऊपर रखा था, so that if it goes till this level as well, मेरा SL it now. And the logic for this support, this level is very simple. अगर मेरे को अकाउंट पास नहीं करना होता, मतलब मेरा अकाउंट अगर और ज़्यादा टारगेट चाहिए होता, देन आई कुड हैव ईजिली केप्ट माई टी पी टिल हियर, बट इस लेवल पे मेरा अकाउंट क्लियर हो रहा था, सो मैंने यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया. सो दिस वॉज द वेरी सिंपल ट्रेड विच आई हैव टेकन एंड विद विच आई हैव क्लियर्ड अनदर अकाउंट. नाउ कंटिन्यू विद द वीडियो विच आई शूट इन द मॉर्निंग. एंड एक और चीज़ जो कुछ लोग आगे मैंने बोलेंगे विच इज़ प्रो यू आर गैमलिंग. अगर भाई प्राइस एक्शन पे अगर ट्रेड करना गैमलिंग है ना, देन दिस इज द काइंड ऑफ गैमलिंग विच आई थिंक एवरी सिंगल गाय शुड डू. $2,000 एपेक्स में इन्वेस्ट करके अगर मैं $65,000 सिंपल बेसिक ट्रेंड लाइन ट्रेड करके निकाल पा रहा हूँ ना, देन आई थिंक एवरी सिंगल गाय शुड डू दैट काइंड ऑफ गैमलिंग. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. कमेंट करने वाले करते रहेंगे. तुम लोग अपने पे ध्यान दो, डिसिप्लिन हो जाओ भाई, इमोशन कंट्रोल करो, साइकोलॉजी इंप्रूव करो, रिस्क मैनेज करो, मनी मैनेजमेंट करो, और गिव अवे में पार्ट ले लो, साइन अप कर लेना. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. स्ट्रेटेजी वाला पार्ट प्ले कर लेना वापस से. वेरी बेसिक थिंग आई डू. मैं इसमें समझाऊँ भी क्या तुमको? दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई डू. ट्रेड्स दिखा दिया, डैशबोर्ड दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया तुमको. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ नथिंग विच आई डू. बाकी बनता रहूँगा मैं बहुत लोगों की लिक्विडिटी, बट इन द एंड व्हाट मैटर इज 20 लोगों की लिक्विडिटी बनने के बाद भी आई मेक मोर मनी देन देम. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टाटा, बाय बाय.